Hey guys, hi everybody. So yeah, I hope you are completing your assignments, and now today also we are here with one very important chapter, and I know that you are scared of these two chapters very much, but you don't need to be. Why? Because the one thing is you are doing the assignments. That means आप हर possible question कर रहे हो जो कि इस chapter से पूछा जा सकता है. Isn't that great? Yeah. एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन फिर भी इसमें से छूट जाता है, सो व्हाट इज द बेनिफिट कि आई एम गोना कम बैक एंड देन आई विल डिस्कस इट विद यू. Isn't it a great idea? Yeah. So but provided कि यार तुम लोग इसको कंप्लीट जरूर करना असाइनमेंट को, ठीक है. ये नहीं कि मतलब ऐसे बोल दिया मैम ने, हमने क्वेश्चन पढ़ लिए और तुमने किया नहीं. Go and complete it, guys. I have taken all of the questions in front of you, giving it to you, ताकि कोई भी ऐसा पॉसिबल क्वेश्चन ना हो जो कि आपको इसमें से रह जाए, कि जिसमें से कि आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाए. ठीक है, रेडी? यस. So guys, the today's topic is biotechnology principles and processes. Very easy chapter. I know that, and you also know that. Yeah. So yeah, here come the first part, that is very short answer type of questions जो कि 1 mark के होते हैं. ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? Name the natural genetic engineer of plants. ठीक है, I know you are thinking it right now. Take it a note. अभी अपनी कॉपी लेके बैठो और साथ में आंसर लिखते जाओ. ओके, 1 मार्क का तो लिख ही सकते हो, राइट? डिफाइन क्लोनिंग. सो क्लोनिंग क्या होता है? 1 मार्क में 1 लाइनर, ज्यादा डिटेल देने का जरूरत नहीं है. ठीक है. नंबर 3, नेम द साइंटिस्ट्स एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. या write it. I know you know it is there in the NCERT as well. How can bacterial cells made competent? First of all, go find out the meaning of competency, which I have told you multiple times in my sessions, but anyways, and what is the use of competency in biology, or you can say the biotechnology also here, right? Next question is, what is elution? ठीक है, ध्यान से देखना स्पेलिंग. व्हाट इज इल्यूशन, राइट? नेक्स्ट इज नेम द रिएजेंट यूज्ड टू विजुअलाइज डीएनए आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. Multiple time I have told you about this, but yeah, I hope you are writing the answer right now. So guys, this is the list of 1 mark question. You have been telling me कि मैम बताओ. So here are the questions in front of you. I hope you are writing the answers with me. Number 2, the short answer type questions, 2 marks. Okay. पहला क्वेश्चन क्या है जो कि बहुत इजी है? व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. वेरी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है ना. आई थिंक आपको आता ही होगा इसका आंसर. या ओके, नेम 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड one enzyme used for joining alien DNA, जिसको हम फॉरेन डीएनए भी कह सकते हैं, and vector DNA. ठीक है, पॉपिंग इन द हेड राइट नाउ. राइट इट ऑन द पेपर. ठीक है, नहीं भी कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना, बट करना चाहिए वैसे इस वक्त. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर बैक्टीरियोफाज वेक्टर्स, जो कि 1 मार्क का होगा. ठीक है, बैक्टीरियोफाज वेक्टर्स क्या होते हैं? नेम द 2 कॉमनली यूज्ड फाज वेक्टर्स. I can't help it, just popping all of the answers are popping. I just thinking that just tell you right now, but I won't. But anyways, list the difference between exonucleases and endonucleases. Very easy question, 2 marks, 2 points. Difference, tabular form. Yeah. Next question, which bond is broken in EcoR1? ठीक है, easy question. नहीं लग रहा easy? Okay, look it up. ठीक है, assignment है ना. Next question, what is the sequence recognized by it on DNA? किससे? EcoR1 से. कौन सा sequence recognize करता है? ठीक है, very easy once again. So 1-1 for this also. So guys, this is for 2 marks. You have 4 questions. Hopefully 4 questions में से you will get the questions from here. Okay, or the type. Next is 3 marks question, जिसमें क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका, what is PCR? So first of all, you just इसको फुल फॉर्म लिखो इसका. ठीक है, देन थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. डिस्क्राइब द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीसीआर रिएक्शन. हमने बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताने इसको क्या क्या चाहिए होता है. चाहो 3 मार्क में आया है तो मैंने आपको पहले ही कहा कि आप इसका जो वो आपका एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया गया ना, वो बना सकते हो. सो बना देना, बहुत अच्छा रहेगा अगर बना दोगे तो. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टर्म इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ. ठीक है, किसके कंटेक्स्ट में बताना आपको? बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन प्लाज्मिड. क्यों होता है, क्या करता है? ठीक है, तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का डेफिनेशन इसके कॉन्टेक्स्ट में देना, नंबर 1. नंबर 2 जो कि 1.5 मार्क का होगा,
and how can this be used as a selection or selective marker in recombinant DNA technology, which is very easy. आपको एक्स-गैल के उसमें कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब समझाना है, ये भी 1.5 मार्क का होगा, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैंने आपको बहुत बार समझाया एंड आई होप आपको आता भी है, ठीक है। सो राइट इट डाउन ना, 1.5 ओके। Next is list the advantages of stirred tank bioreactor over shake flasks. I think guys it is very easy question. मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें से बायोरिएक्टर्स में से तो ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना ही करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस नंबर 1 डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस, ठीक है, ए पार्ट है इसका। बी है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन एनिमल्स। पहले तो आप डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस का वो लिखोगे, उसमें स्टेप्स लिखो कि कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 इज दिस, नंबर 3 इज दिस, नंबर 4 इज दिस, राइट दैट। एंड आफ्टर दैट वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन एनिमल्स, यू हैव मेनी, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में यूकैरियोट्स में कौन से होते हैं वो आपने लिखने हैं। आई होप इट इज पॉपिंग इन योर हेड राइट नाउ, इट शुड बी। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द पैलिंड्रोम सीक्वेंस और एंड स्टिकी एंड्स विद एग्जाम्पल्स। तो अब देख सकते हो पैलिंड्रोम को एक्सप्लेन करो, पहले क्या उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दो। स्टिकी एंड्स, किसी स्टिकी एंड्स का किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कंटेक्स्ट में उसका वो दे दो। आपके पास कितने एग्जाम्पल हैं, यू कैन टेक द इको R1 ऑल्सो, ठीक है, इको R5 का ले सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू, यू कैन टेक दैट, ठीक है। हाँ, इसमें से एक जो है वो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज अप टू यू, फाइंड दैट। ओके, नेक्स्ट last but not the least long answer type question guys which is of 5 marks, ठीक है। यहां तो आपको बच्चे जहां जहां डायग्राम लगता है वो तो भाई साहब बनाना ही बनाना है, उसमें से यू डोंट हैव एनी वे आउट, ठीक है। पूछा है चाहे नहीं पूछा है, डज नॉट मैटर, यू हर्ड मी राइट। ओके, सो लिस्ट द इसेंशियल फीचर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप कराएं कि क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, कितनी साइट्स होनी चाहिए, यू नो, एंड ऑल द अदर फीचर्स की कौन कौन सी साइट्स होनी चाहिए, कौन सी जरूरी है, कौन सी नहीं जरूरी है, लाइक दैट। आफ्टर दैट मेक अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ PBR 322, राइट। PBR 322 का आपने एक वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है एंड आई होप आप लोगों को आ गया होगा अब तक तो, एंड नहीं आया तो मैंने आपको इसका वो भी दिया है, एक मेमोनिक भी दिया है ना, पहली बारी MTRE। सो जस्ट गो दैट, बायोलॉजी धुन में आपको मिल जाएगा वो जाके, एंड आई थिंक इट इज वेरी वेरी इजी। ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम और उस पर सारे वो लिखो, ठीक है। वेल लेबल्ड लिखा है, लेकिन वेल लेबल्ड, हाँ, सब कुछ लेबल करना आपने। ओके, नेक्स्ट इज 5 मार्क्स वंस अगेन, 3 2 में डिवाइड कर लो इसको, 3 मार्क्स का ये होगा और 2 मार्क्स का ये हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट एक्सप्लेन द टर्म कॉम्पिटेंट सेल्स एंड देयर यूज इन ट्रांसफॉर्मेशन। सो गाइस कॉम्पिटेंसी यहाँ पे 2 बार पूछ लिया गया है, दैट मीन्स यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम द कॉम्पिटेंसी पार्ट। ओके, सो आई एम होपिंग बाय नाउ यू आर वेल अवेयर, बिकॉज तुम असाइनमेंट करने बैठे हो, जब तुम वीडियो पॉज भी कर रहे होगे बीच में, अगर तुम सच में असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हो, एंड आई एम ग्लैड दैट यू आर डूइंग इट। सो कॉम्पिटेंसी का मतलब अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, तो वो आपने करना है। एंड देयर यूज इन ट्रांसफॉर्मेशन, तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन भी पता करो कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, आता है तो लिखो। ओके, एंड एक्सप्लेन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, एंड आई होप यू नो दिस कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। ये भी, इसको भी 3 और 2 में डिवाइड करो, 3 and 2, ठीक है, यू गेट द मार्क्स। एंड आई थिंक इसमें भी आप एक डायग्राम बना सकते हो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का, मर्जी है, 2 मार्क्स में है, वैसे बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है। सो गाइस दिस वाज इट, आपका असाइनमेंट फॉर योर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। आई होप यू कंप्लीट इट फुली and let me be back and we'll discuss it. Okay, so till then, bye bye, God bless you, and keep studying, keep working hard. Okay, bye bye, God bless you all.